Really, apologies from my end for making you people wait for so long. Okay, no problem, no Um, problem. yeah, so you just have to. Hi everyone. Before we start, I just want to make few points clear over here. Just struggling with my laptop and Wi-Fi connection, so you have to bother me without looking, without my FaceTime. So, but yeah, the good point is we have the presentation and we will be sharing that so that you can see something for next 15 to 20 minutes, some kind of visuals, not just listening to my voice. And we will keep it as much as interactive we can. And before putting up anything, I just want to know in which particular language you are comfortable. And comfortable, I mean like more than comfortable. So please vote out for the same. What you have to do is very simple things. I will be naming the language. You just have to raise your hands. That's all. So how many of you are comfortable in Hindi? Impressive. 12 hands, around 13, 14 hands. 21, is it? Yes, 21. Awesome. So let's keep it in Hindi. Um, Manik, do you mind if you can share that presentation? Okay, And I'll be glad. Just give me a second. sure, thank you. Oh, no problem. In the meantime, let's have a chit chat. कैसे हो आप सब लोग? And कैसा चल रहा है अभी? एग्जाम सीजन या क्या चल रहा है अभी लाइफ में? In terms of exploring other opportunities या even मानिक ने कुछ अभी तक इन द मीन टाइम कुछ इंट्रोड्यूस किया किसी चीज के बारे में एंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन और कुछ भी एनी थॉट और एनी पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दैट यू प्लीज फील फ्री टू unmute yourself or even if you want to chat drop it in the chat you can तो वहां पर भी डाल सकते हो बट या यू कैन इंटरेक्ट इन द मीन टाइम किसी को कुछ भी कहना है या कुछ भी Guys, पूछ लो शिवम या एकदम. आयु He's a humble guy and frank as well. You can ask anything from him. कुछ भी पूछ सकते हो. आयुष या आयुष मैन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और जो बोलना है बोल सकते हो सो ट्रू मैन यही होता है सेमेस्टर एग्जामिनेशन के एक महीने पहले सिलेबस क्या है पता लगे और सब्जेक्ट पता लग जाए देन बस सीजीपीए मेंटेन करना है। अच्छा इन द मैं मीन टाइम स्क्रीन मैं शेयर अपना कर दूं? थोड़ा सा हाँ, आप इंट्रो दे दो तब तक मैं सॉरी स्क्रीन शेयर करता हूँ. ओके. श्योर श्योर तो इधर उधर की बातें कर लेते हैं इन द मीन टाइम है ना बिफोर इवन स्टार्टिंग तो लाइक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में एज यू नो मे बी हेडलाइन पे भी आ रहा होगा आई एम शिवम गर्ग and currently I'm a DevRel community, whatever you want to put it out at Outdefine. In my prior experience, so I've been the program manager for Gulf Script Summer of Code last year. I I've been an intern both in like uh, Indian companies and global companies in my last three years, and I have interned in around 11 plus companies, and which also consist of Y Combinator startups as well. I'm still an undergrad. The good part is, so if you want some tips regarding, or if you want to share your pressure, no, regarding the exams, feel free to do that. I'm still in my final year, so going to complete my bachelor's in probably June, and in more specifically with the Outdefine. So in Outdefine, I'm majorly manage the South Asia, and in the South Asia, I manage the communities, the product, and events and conferences, which consist of hackathons, meetups, and number of things that comes into that segment. So ये था short crisp introduction.
and I'll drop my LinkedIn if you want. You people can connect me on that on the same. Or I can like also I can drop my contact number as well if you want. Yeah, so that's one. But I believe LinkedIn थोड़ा ठीक रहेगा to maintain the relationships in a right direction. Um, Moving forward, thanks Manik for presenting the screen. So I hope you people have a मतलब थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के इसके बारे में क्या होने वाला है इस पूरे सेशन के अंदर थोड़ा सा जिस्ट होगा कितने लोगों को है जस्ट रेज योर हैंड्स ऑसम और बढ़िया होगा कि इफ यू कैन गिव अ वन वर्ड रिगार्डिंग द सेशन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस वन कि क्या लग रहा है क्या होने वाला है एंड व्हाट यू थिंक क्या होगा कोई भी वन वर्ड यू कैन ड्रॉप इन द चैट और इफ यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ वैसे भी कर सकते हो कुछ भी लाइक वन वर्ड टू पुट इट आउट नहीं करना एनीवेज let's move on. Manik, can you please opportunities to learn more and more might be the case. Um, so जैसा कि लिखा हुआ है कि आई विल बी गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन जो लाइक क्या किया है लास्ट में देन आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू पीपल कि वेब थ्री लाइक है क्या सब लोग वेब थ्री टेक्नोलॉजी के बारे में कहते रहते हैं बट किसी को समझ में नहीं आया क्रिप्टो बिटकॉइन से आगे है ना तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट कोर ऑफ इट फिर आउट डिफाइन क्या है एंड उसका विजन एंड मिशन क्या है आपको कैसे बेनिफिट होगा इस क्लब को ज्वाइन करके जिसका एडवोकेट मानिक है एंड इसके ऑनबोर्डिंग स्टेप्स क्या हैं आप कैसे क्लब में ज्वाइन हो सकते हो और अपने आप को वेरीफाई कर सकते हो बिकॉज जब आप वेरीफाइड हो जाओगे उसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको लिवरेज करने को मिलेंगे जो कि मैं कवर कराऊंगा 5th पॉइंट में एंड देन स्कैन एंड सी इज बेसिकली आपको क्यूआर कोड होगा यू कैन लाइक ड्यूरिंग दिस एंटायर मीट इटसेल्फ आपको वो प्रोसेस बताया जाएगा सो दैट यू कैन फॉलो अप दैट प्रोसेस और अपने आप को इसी मीट के ड्यूरेशन में आप अपने आप को वेरीफाइड करा लो एंड देन contact so basically Manik के contact होंगे so that you can join anytime if you have any particular queries you can join or ask him or you can probably be the part of the community जो उसने WhatsApp पे बना रखा है या Telegram awesome यहाँ तक clear है सबको just give me a like a thumbs up love whatever you want any emoticons thank you so much for cooperating as I mentioned previously अभी मैं जो आउटडिफाइन में हूँ वो एज अ कम्युनिटी स्पेशलिस्ट या डेवलपर हूँ जो साउथ एशिया हैंडल करता है पहले I have completed my intern and a full-time role in almost around 10 to 11 companies both in India as well as in international market then I've been the part of programs which are very renowned in terms of open source FOSS Asia, Gulf Script Summer of Code in majority of all the capacities as a contributor, mentor, project administrator, and program manager as well. Like पूरे program को handle करना and all. Apart from this, if you talk about other programs, so I've been as a AWS community builder, GDSC, Wow. If any of you have like been to GDSC Wow last year या फिर इस साल का तो we were like me and another guy we were the initiator of that entire program in India for the first time and last time हम लोग Delhi NCR like which is one of the hotspot उसके program like head POC or whatever you want to say head lead organizer थे that's all about me Manik next slide please introduction to Web3 next slide please so I will be giving you a brief कि Web1 क्या है पहले Web3 पे आने से पहले so Web1 ऐसा मान लो कि न्यूज़पेपर्स और स्टैटिक पेज जो हम लोग बनाते हैं HTML CSS के अंदर जो सिर्फ हमारे लोकल सिस्टम पे रहते हैं दीज आर द वेब1 पेजेस जिन्हें बस एक जगह से एक दूसरी जगह तक सेम होस्ट पर होंगे तो वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगा कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं होगा कि
इस बटन पे क्लिक किया तो वो दूसरा बटन खुल जाए, तीसरा बटन खुल जाए, ऐसा नहीं होगा। या फिर कोई रियल टाइम अपडेशन नहीं हो रहा होगा, रियल टाइम एंट्रीज नहीं हो रहे होंगे। सो दिस इज वाज व्हाट वेब 1 इज। नाउ वी व्हेन वी अपग्रेडेड टू वेब 2, next slide please Manik. So you got to get a chance to interact in the real time and engage in the real time, just like Google Meet या फिर और अपने आपके एप्लीकेशन ब्राउजर या IRTS IRTC की वेबसाइट से तो सब फ्रेंडली होंगे रेलवे का। तो that's also the component of Web 2 itself। ये सारा वेब 2 रहा। सिक्योरिटी मीजर्स रहे, प्रिवेंशन मीजर्स रहे, सिक्योरिटी। बट ऐसा ना कि जब हमारे वेब 2 के अंदर सिक्योरिटी रहा, जैसे व्हाट्सएप पे मैं बात करूँ, एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है, राइट? सबको पता है ना, एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन होता है, थर्ड पार्टी इनक्रिप्शन होता है। वो लाइक वेब 2 के अंदर कंसिडरेशन में आता है कि एक प्राइवेसी पॉलिसी लगाई गई, जैसे कि तीसरा बंदा हमारी कन्वर्सेशन ना सुन पाए, या फिर हमारा डेटा जो है वो किसी, इवन व्हाट्सएप इंक्लूडेड, वो उसके पास ज़्यादा टाइम तक स्टोर ना रहे। तो मेरा जो डेटा है, जैसे अगर मैं रोहित के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, या मानक के साथ, या काव्या के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो सिर्फ मेरे को इन्हीं लोगों के पास मेरा वो चीज़ डेटा रहे, या मेरे इन्हीं चैट्स में मेरा डेटा रहे, या इनको इन तक ही पहुंचे और किसी थर्ड पार्टी के पास ना जाए। दैट वाज द कंसर्न। ठीक है, क्या वो ऑथराइज है? अब आपने देखा होगा जब से ये क्या कहते हैं, देयर इज अ फीचर कम्युनिटी करके जो फीचर आया है, जिसमें काफी सारे सेलिब्रिटीज ने अपने अपने चैनल्स बना दिए हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके पास अब रैंडम मैसेज आने लगे होंगे, कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट के, या किसी ये लाइक बहुत सारा गवर्नमेंट रन प्रोग्राम्स होता है तो उनके आने लगे होंगे, या जियो मार्ट का आने लगा होगा। तो ऐसा आपका डेटा ऑलमोस्ट जो है वो एक शेयरेबल फॉर्मेट में हो गया। कंपनी डू से कि हाँ भाई एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, बट वो शेयरेबल है, इतना सिक्योर नहीं है, बिकॉज सेंट्रलाइज है। कहीं कहीं ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस डेटा को तो स्टोर करना पड़ेगा, अगर मेरे को आप तक भेजना है तो मतलब वो पेपर तक ही था, या फिर वाइट पेपर तक ही था, या फिर ऐसा कर लो बस रूल्स बुक में ही था, सबको दिखाने के लिए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि नहीं भैया हम डेटा स्टोर नहीं कर रहे, बट एक्चुअल में वो डेटा स्टोर होता था। नाउ कमिंग टू वेब 3, अब वेब 3 का जरूरत क्यों पड़ा? यही सारा इशू था कि एक जगह सेंट्रलाइज्ड हो रहा था सिस्टम, मतलब मेरे को सर्वर पे डेटा स्टोर करना ही पड़ रहा था। अब लेट्स से आपने किसी वेबसाइट पे जाके पूरा डेटा स्टोर कर दिया डेटाबेस में, लेट्स से फेसबुक पे आपने अकाउंट बनाया, आपका पूरा अकाउंट में सब कुछ रहा। इवन इफ आपने देखा होगा कुछ मूवीज वगैरह में कि फेसबुक का चैट वगैरह जो है वो पुलिस ऑफिसर्स वगैरह निकलवा लेते हैं जब उनको जरूरत पड़ता है। इवन व्हाट्सएप का इंफॉर्मेशन भी पुलिस ऑफिसर्स वगैरह निकलवा लेते हैं जब उन्हें रिगार्ड पड़ता है उस चीज का, विदाउट रिगार्ड के उस पर्टिकुलर पर्सन का लाइक परमिशन था या नहीं था जिसका वो डेटा था, फिर भी वो उस चीज को एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं एंड अपने सर्विलेंस के लिए यूटिलाइज करते हैं। ये इशू अभी बहुत छोटा है, इसलिए दिया मैंने क्योंकि लाइक आप सब लोग, मेजोरिटी ऑफ अस, हम रिलेट कर सकते हैं। दूसरा इशू क्या आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो, जैसे अमेरिका में कोई जॉब प्रोफाइल निकला, ठीक है, अब किसी चाइना वाले ने VPN यूज करके अपने आप को प्रूव कर दिया कि नहीं भाई मैं तो इंडिया में ही बैठा हूँ या USA में ही बैठा हूँ, इसलिए मुझे जॉब मिल जाना चाहिए। अब जो उसको जरूरत था, क्योंकि आधार कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ ID कार्ड किसी ना किसी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं और वो एक्सेसिबल है विदाउट द परमिशन ऑफ द इंडिविजुअल हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो वो कोई भी निकाल सकता है, आदर थ्रू हैकिंग और किसी भी कोर्स ऑफ मेथड से, या फिर किसी अगर गवर्नमेंट बॉडी के अंदर या फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इंडल्ज है तो उसके लिए तो और जल्दी एक्सेसिबल बन जाती है वो चीज़, राइट? तो वो एक्सेसिबल करके क्या करते थे कि वो शो कर देते थे कि नहीं भाई मैं तो USA का बंदा हूँ, ये रहा मेरा गवर्नमेंट कार्ड, ये रहा मेरा, ये जो प्रूफ करता था उन्हें कि एज एन इंडिविजुअल हाँ ये सही कह रहा है, ये तो USA का ही बंदा है। एंड कंपनीज उन पर रिलाय कर जाते थे और उन्हें नौकरी दे दिया करते थे। तो ऐसा बहुत सारा फेक स्टोरी होता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि आपके आधार कार्ड का यूटिलाइजेशन करके या पैन कार्ड का यूटिलाइजेशन करके किसी और ने कुछ और ट्रांजेक्शन्स कर दिए। तो क्योंकि सेंट्रलाइज था यहाँ तक सिस्टम वेब 2 तक, इन्हीं सारी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए वेब 3 आया। वेब 3 का मतलब क्या है?
यहाँ पर 3 बॉडी का होना बहुत जरूरी है अगर किसी को डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे? लेट्स से मेरा डेटा है, मैंने डाला, मानिक ने कोई सिस्टम बनाया, मानिक के सिस्टम पे मेरे को डेटा डालना पड़ा। या फिर लेट्स से इस मीट पे आने के लिए गूगल कर दे कि आप लोगों को ईमेल रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी इसमें एंट्री ले पाओगे, रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लेट्स से मेरा एंट्री हुआ, रजिस्टर हुआ डेटा। नाउ मेरा एक्सेस किसके पास है? एक तो गूगल के पास है, एक मेरे पास है, और एक जो इवेंट बना रहा है जैसे मानिक, इसके पास है। हम तीन इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सवाल होता है आपका वेब3 में क्या है, जब तक मैं अपनी तरफ से कोई कोड नहीं डालूंगा, मानिक अपनी तरफ से परमिशन अलाउ नहीं करेगा, और गूगल मीट जब तक अपनी तरफ से परमिशन अलाउ नहीं करेगा, जब तक हम तीन परमिशन अलाउ नहीं करते एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो डेटा एक्सेसिबल नहीं होगा किसी को भी। मानिक को भी नहीं, ना ही गूगल को। सिर्फ मैं अपना डेटा मैं ही देख सकता हूँ। काव्या नहीं देख सकती, रवि नहीं देख सकता, रोहित नहीं देख सकता, ओशो नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता। अगर लेकिन हम तीनों एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं सेम टाइम पे, तो वो डेटा जो है वो विजिबल हो जाएगा। इतना समझ में आया कि वेब3 का जरूरत क्यों पड़ा, कैसे सिक्योर कर रहा है हमारे ट्रांजैक्शंस को या हमारे डेटा को, और प्रोफाउंड लेवल पे। ऑसम, ऑसम। तो ये सब था वेब3। अब क्या हुआ? अब ट्रांजिशन हुआ कि आप लोगों ने ये कोड पढ़ा होगा लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, या फिर जो भी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह भी आते होंगे, कि डेटा इज गोइंग टू बी न्यू करेंसी। आगे जाके जिसके पास डेटा है वो मालिक, या फिर वो बॉस है, मेगा बॉस है, राइट। बिकॉज अगर डेटा है तो उसका ट्रांजेक्शन करके तुम उसे बेच सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, उसके एन नंबर ऑफ यूजेस है। तो अब डेटा को प्रोटेक्ट करने में दुनिया लग गई। तो प्रोटोकॉल्स आई। प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस होता है, बुकिश लैंग्वेज की जो डेफिनेशन कहते हैं जिसे, है ना। बट होता क्या है प्रोटोकॉल? एक तरीके से एक सिक्योर फॉर्मेटेड ट्रांजेक्शन का डिटेलिंग कह लो, या फिर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कह लो, जिसके थ्रू पता है कि अगर इस स्टेप से हमने सिक्योर किया तो जो डेटा लीकेज का चांसेस है वो 80% है, 90% है, 100%, या फिर 99.99% है। विच इज वे वे मतलब किसी भी तरीके से विच इज गेटिंग वे बेटर देन जो वेब 2 के अंदर प्राइवेसी या सिक्योरिटी मिल रहा था हमें। तो इसीलिए प्रोटोकॉल्स आए, लेयर्स आए जिनके ऊपर वो बनाया जाता है बेस के तौर पे। अब मतलब जितना आपने सुना होगा लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है। इसका मतलब क्या होता है कि लेयर 1, लेयर 2, 3 ये शो करता है कि आपका डेटा कितना सिक्योर है। फिर हर लेयर के हिसाब से उसका एक अलग ट्रांजैक्शन फीस होते हैं, अलग अलग चार्जेस होते हैं, प्रोमिनेंट यूजेज होते हैं कि किस तरीके के यूटिलाइजेशन के लिए या किस तरह के ऐप या वेबसाइट के लिए या वेब पेज के लिए मुझे कौन सा लेयर यूटिलाइजेशन ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर नहीं है। तो उन सारे डिस्टिंग्विशमेंट पे या फिर डिफ्रेंसिएशन पे ये सारे स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बोरिंग फॉर यू पीपल, बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू गिव यू द एंटायर वेब3 इंट्रोडक्शन वाला चीज़। बस इधर हम लोग हैं कि आपको एक क्रक्स समझ में आ जाए, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, इससे क्या होगा, इसका क्या क्या फ्यूचर स्कोप है, सो दैट यू कैन जॉइन दिस ग्रुप। एंड इवेंचुअली बहुत सारा ऑफलाइन इवेंट्स, हैकाथॉन और इंट्रोडक्टरी सेशंस होंगे जिसमें आप पार्ट ले पाओ लेटर स्टेज में। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है इसके अंदर, वेब3 के अंदर, बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी। बजाय कैश के आपका वो जो भी अमाउंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, इट शुड बी नोटेबल। वन, ब्लैक मनी रिड्यूस हो जाए, दैट्स वन अनदर प्रोस्पेक्ट ऑफ इट। दूसरा आता है इसे लाइक एक तरीके से इससे बढ़ भी सकता है, लाइक काइंड ऑफ व्हाट कैन से ब्लैक मनी। क्यों? अभी अगर मैं 10 करोड़ बैग में भर के ले जाऊं तो इट्स गोइंग टू बी सीएबल, या फिर अटेंशन मिल सकता है उसको, अगर 10 CR अगर मेरे सूटकेस में है, क्योंकि छोटे सूटकेस में नहीं आएंगे। बट व्हाट इफ अगर मैं एनएफटी ले जाता हूँ 10 करोड़ का, या डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर देता हूँ, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सीएबल, राइट। या फिर अटेंशन नहीं होगा उसका इतना ग्रास। तो दीज आर सम ऑफ द लाइक कोर बेनिफिट जिसको, जो इसके अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं, बट उनको भी मैनेजेबल कर सकते हैं एक पॉइंट तक, एक रिगार्ड तक। नाउ आई विल बी मोर डिफरेंशिएटिंग और मोर टेलिंग यू अबाउट के आउट डिफाइन का रोल क्या है। वेब3 तक समझ में आया?
डिफाइन क्यों, या फिर क्लब क्यों ज्वाइन करना है। मानिक, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आउट डिफाइन एक ऐसा फ्री टोकनाइज कम्युनिटी है, फ्री टोकनाइज कम्युनिटी है जिसमें अभी तक 72,000 लोग हैं। एंड 72,000 लोग कैसे हैं? 142 कंट्रीज से हैं। 72,000 वो लोग हैं जो प्रोमिनेंट है वेब3 के अंदर एक 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 रिगार्ड पे। और ये जो 72,000 है, ये थोड़ा पुराना नंबर है, लाइक 4-5 months पुराना। नाउ वी हैव क्रॉस्ड 1 lakh पीपल ओवर द कम्युनिटी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम इंडिया के अंदर अपना इकोसिस्टम ला रहे हैं, बिकॉज वी हैव फाउंड कि इंडिया में वेब3 कल्चर है, काफी सारा इवेंट्स होता है, सब कुछ होता है, बट राइट स्पॉट पे राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है जो ट्रांजिशन करना चाहते हैं वेब3 के अंदर एक करियर या फिर फुल फ्लेज लेवल तक। तो वी केम इन दिस सेगमेंट टू हेल्प आउट द पीपल। एंड या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज माने। विजन क्या है इस क्लब का? इज टू हेल्प आउट द स्टूडेंट्स के अब अभी आपको अभी अभी हम लोग डेमो भी देंगे कि दिखता कैसा है ये टोकनाइज कम्युनिटी, ठीक है ना? तो ऐसा समझो अभी के लिए कि इट्स मोर ऑफ लाइक अ लिंक्डइन, बट इस पे क्या है कि जैसे लिंक्डइन पे आपको प्रीमियम लेना पड़ता है, आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। यू कैन अर्न डेफ टोकन जो कि आगे जाके इवेंचुअली जिनका प्राइस होगा एक सर्टेन अमाउंट का, एंड देन यू कैन एक्सपेंड इट ऑन बेसिक यूटिलिटी। अभी के लिए वो डेफ टोकन कैसे काम करता है, या फिर ऐसा मान लो आपका वो डेफ टोकन इज लाइक 1 रुपए। वो रुपए कैसे काम करते हैं कि आप मॉक इंटरव्यूज कर सकते हो अपने डोमेन के अंदर, आप रिज्यूमे रिव्यूज करा सकते हो जो कि $100 के वर्थ होते हैं। आप जॉब करियर्स वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको कोई कोर्स सीखना है यू कैन टेक दैट कोर्स एज वेल। इसके अलावा ये तो बहुत एजुकेशन सेंट्रिक हो गया, हमें तो कुछ और एक्सप्लोर करना है। तो हमारे हैकाथॉन्स होते हैं इनवाइट ओनली। हैकाथॉन्स कैसे होते हैं? लेट्स से 100 लोग हैं, ठीक है, उस हैकाथॉन के अंदर 100 लोगों का या एक मीटअप है, उसके अंदर सिर्फ 100 जने आ सकते हैं, दैट्स द लिमिटेशन टू इट। तो उसमें से जो 60 से 70 लोग होंगे, दीज आर गोइंग टू बी द पीपल, स्टूडेंट्स, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने पहले ही कोई एक इंटर्नशिप कर रखा है। और ये स्टूडेंट्स वो होते हैं, एज आई मेंशन, इनवाइट ओनली है। तो वो होते हैं जो क्लब के मेंबर्स होते हैं ऑलरेडी, या एडवोकेट्स के थ्रू रेफर्ड होते हैं। तो ये जो अराउंड 60 to 70% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उस मीटअप के अंदर, बाकी के जो 30 से 40 लोग बचते हैं वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स कैसे? जो इतने इंडिविजुअली पोटेंशियल हैं कि वो लोग हायर कर सकें आपको ऑन स्पॉट। दे कैन बी सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, कम्युनिटी मैनेजर, डेवरेल, फाउंडर हो सकते हैं खुद ही, या कोई भी एक ऐसा पर्सन जो आपको ऑन स्पॉट हायर कर सके। दीज आर द थिंग जो हम लोग आपको आगे आगे अगली वाली स्लाइड्स में कवर कर रहे होंगे और ज्यादा डिटेल में। मानिक, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो कमिंग टू द बेनिफिट्स, आपके लिए क्या है इस पूरी चीज में? टेक एंड यू, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार ये तो वेब3 का मतलब तो टेक्निकल होता है ना, बट ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे मार्केटिंग वाले की जरूरत नहीं पड़ती, कम्युनिटी मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती, या प्रोडक्ट मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती, या बिजनेस डेवलपमेंट वाले की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी एक टेक्नोलॉजी आती है उसके अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं, एक कंपनी को अलग अलग रिसोर्स पर्सन की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसमें भी टेक नॉन टेक दोनों को की जरूरत पड़ती है। एंड इन दिस एंटायर क्लब यू विल बी ओनली नॉट टेक वाले लोग बेनिफिट हो रहे होंगे, बट नॉन टेक वालों के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स भी हैं वेयर दे कैन पिच देमसेल्फ। जैसे अभी मैंने मीटअप बताया, तो ऐसा क्या हुआ करेगा, जो टेक्निकल वाले हैं दे हैव टू पिच देमसेल्फ इन अ 1 minute टाइम फ्रेम, जहाँ पे वो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। एंड हैकाथॉन जो होता है वो मेजरली फोकस्ड होता है मोर टेक्निकल साइड में, लेकिन जो आइडियाथॉन्स होते हैं दीज आर द फॉर पीपल हु आर इनटू द नॉन टेक बैकग्राउंड मेजरली, बिकॉज जजमेंट जो होता है वो बेसिस पे आता है कि आपने कितना अच्छा प्रेजेंट किया, कितना अच्छा शोकेस किया, एंड आपका स्ट्रैटेजी वगैरह कैसा था। तो दिस इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स मार्केटिंग, बीडी पीपल, कम्युनिटी पीपल, ग्रोथ वाले लोग, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, जिनका प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा प्रायर पे आता है। एंड देन हैकाथॉन इज द सेगमेंट जहाँ पे आप टेक्निकली थोड़ा साउंड चाहिए होता है। क्लब मेंबरशिप,
तो जब आप वेरीफाइड क्लब मेंबर बन जाओगे, विच इज गोइंग टू बी लाइक, हम लोग दिखाने वाले हैं आपको अगले नेक्स्ट स्लाइड्स में कि क्लब मेंबरशिप कैसे लेनी है। कोई पे नहीं करना है, इट्स अ फ्री, बट एक प्रोसेस है जो सो दैट आप वेरीफाइड का टैग मिल जाए आपको। एंड जब हम मतलब ये चीज़ है कि आप लोगों को डेफ टोकन्स भेजे जाएंगे बिकॉज यू आर द क्लब मेंबर्स। तो बिना कुछ किए इनिशियली, तो सो दैट यू कैन एटलीस्ट ट्राई थिंग्स विद द डेफ टोकन्स। तो डेफ टोकन्स इज बेसिकली करेंसी कह लो आप, डिजिटल करेंसी जो आप लोगों को मिलेगा, जिसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, जैसा मैंने अभी बताया, मॉक इंटरव्यूज, रेज्यूमे रिव्यूज, हैकाथॉन। अभी कुछ एक वेब3 कनेक्ट करके हमारा दिल्ली में हो रहा है, इट विल बी गोइंग टू सून इन पंजाब जून में, जब आप लोगों के एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे। तो आप उन इनवाइट ओनली इवेंट्स को यूज कर सकते, उनमें आ सकते हो बाय यूजिंग डेफ टोकन्स। एंड हैकाथॉन्स का सीरीज होने वाला है इन अगस्त। एंड ऑल्सो IBW वीक के बारे में अगर पता हो आप लोगों को, बेंगलोर में होता है ड्यूरिंग द दिसंबर मंथ, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंसेज होता है। तो वहाँ पर भी कुछ इवेंट्स पेड होते हैं। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी, आप डेफ टोकन पे करके भी उन उन प्रोग्राम के अंदर, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर एंटर हो सकते हो। कोलैबोरेशन, तो ऐसा बताया जैसे कि अभी मानिक जो है अपने एंड पे काफी सारा कॉन्फ्रेंसेस या फिर हैकाथॉन्स वगैरह भी होस्ट करेगा, या फिर हमारे साथ कोलैबोरेशन में करेगा जब हम लोग रीजनल कराएंगे नॉर्थ का, या फिर पैन इंडिया पे कराएंगे, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कोर टीम एज वेल। प्रायोरिटी दी जाएगी क्लब मेंबर्स को, सो दैट दे कैन बी द पार्ट एंड द इनिशिएटर इन द सेम ऑफलाइन इवेंट्स एज आई मेंशन। और स्वैग्स भी होगा, तो जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कम्युनिटी के अंदर किसी भी तरीके से, या एक्टिव है, सो दे विल बी गेटिंग द स्वैग्स एज वेल इन अ पीरियड ऑफ सर्टेन मंथ्स। तो ये सारे बेनिफिट्स थे। अभी तक कौन कौन क्लियर है, या अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? जो क्लियर है गिव अ थम्स अप प्लीज। हाँ, मतलब जिनको क्वेश्चन है दे कैन आस्क, अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन, नो वरीज। और इफ यू डोंट वांट, you can also drop in the chat. I can take the question from the chat itself. आप टाइप कर दो, वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चन फॉर श्योर। तो ये प्रोसेस है एंड कि आपको आउट डिफाइन का प्रोफाइल क्रिएट करना है फ्रॉम योर Gmail, एंड देन यू हैव टू ज्वाइन द कम्युनिटी। एक गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, उसके अंदर ये स्टेप प्रोसीजर लिखे हुए हैं। देन जैसे आप वो गूगल फॉर्म भरोगे, यू यू विल बी वेरीफाइड एज अ मेंबर। Man, can you please drop that link? Or if you don't mind, can you please make them go through with the process as well? कि गूगल फॉर्म एक बार खोल के दिखा दो एंड फॉलो अप कर लो वो प्रोसेस है, if it's okay for you. या इट्स ओके फॉर मी, पर प्रेजेंटेशन रुक जाएगी, कोई बात नहीं ना? हाँ हाँ, no worries. In the meantime, I'll address the questions as well. ये रहा गूगल फॉर्म। सो So जैसा आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे एक लिंक है। मानिक, if you want to continue, you can, man. क्या? If you want to continue with this, giving the instructions, you can. ओके, नो, यू कैन गो इफ यू वांट टू, अदरवाइज आई कैन, No, नो no, प्रॉब्लम। yeah, just go on, man. ओके, सो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक का यूज करके आपको मैं बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप आउट डिफाइन की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। आपको इसी लिंक से बनाना है, आप कोई मतलब डायरेक्ट गूगल से जाके नहीं बना सकते, बिकॉज ये लिंक से हम ट्रैक कर सकते हैं दैट हाउ मेनी पीपल हैव जॉइंड थ्रू दिस कम्युनिटी। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर ज्वाइन नाउ कर लेना। ज्वाइन नाउ करके यहाँ पर आप ईमेल भी डाल सकते हैं, पासवर्ड भी डाल सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, या मोर सिंपलर आप गूगल से भी कर सकते हैं। अब एज सच मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, तो अगर मैं गूगल से करूँगा तो मेरी डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। बट उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो यूट्यूब पर बना रखी है, मैं उसका लिंक अभी चैट सेक्शन में दे दूंगा, या ग्रुप में भी डाला हुआ है, मैं डाल दूंगा। उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा लाइक स्टार्ट टू एंड प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। ठीक है, और प्रोफाइल बनाने के बाद क्या करना है, प्रोफाइल बनाने के बाद आपको जो आपकी प्रोफाइल का लिंक होगा वो आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। अब
किसी किसी को ये भी डाउट आ रहा था लाइक हम प्रोफाइल कॉपी कैसे करें और पेस्ट कैसे करें, सो उसके लिए भी मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई है जिससे आप अपनी प्रोफाइल कैसे कॉपी कर सकते हैं, कैसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये स्टेप खत्म हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, आप व्हाट्सएप ग्रुप आपका ज्वाइन होना चाहिए। अगर आपका ज्वाइन है सो दैट विल बी ग्रेट, अगर ज्वाइन नहीं है तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी यहाँ पे मेंशन है। नाउ थर्ड स्टेप विल बी यू हैव टू कंप्लीट द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप। सो दिस इज थर्ड स्टेप। जैसे आप फर्स्ट और सेकंड स्टेप कंप्लीट करोगे तो आपका बस खत्म हो जाएगा सब कुछ। आपको यहाँ पर ज्वाइन कर देना है, एक्नॉलेज कर देना है। ओके, यहाँ पर आपको बेसिकली अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है सो दैट इफ़ इन एनी केस आई वांट टू कॉन्टैक्ट एनीवन आई कैन। ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि जो आप ईमेल आईडी यहाँ पर डालोगे उसी से सारा आपको मतलब जो भी एसेट्स, डेफ टोकन्स या कोई भी फ्यूचर अनाउंसमेंट होगी हमारे क्लब की तरफ से या आउट डिफाइन की तरफ से, वो आपकी ईमेल पर आएगी। तो वर्किंग ईमेल ही डालना। ओके, और ब्रांच कौन सा, मतलब आपकी ब्रांच है, बी टेक है, सी एस सी या कोई स्पेशलाइजेशन है, आई ओ टी, ए आई एम एल, ए आई एन डी एस, बी सी ए, बी एस सी, इफ़ यू आर इन नॉन टेक बैकग्राउंड लाइक एम बी ए एंड वट एवर, वो आप डाल सकते हो यहाँ पर। आपका ग्रेजुएशन ईयर क्या है, लाइक कब आप ग्रेजुएट हो गए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो 2027 में, अगर अभी जो फर्स्ट ईयर में फ्रेशर्स आएंगे वो 2028 में होंगे, तो जो भी आपका ग्रेजुएशन ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है। कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हो, तो अगर आप हमारे कॉलेज से हो तो हमारे कॉलेज का नाम डाल सकते हो। ओके, और अपना फुल नेम डालना है। सो दैट्स ऑल। इसका लिंक भी मैं अभी शेयर कर देता हूँ, चैट में शेयर कर देता हूँ। अभी एंड में मैं गूगल फॉर्म फिल करवा दूंगा ऑन द स्पॉट इसी मीटिंग में, क्योंकि अगर किसी को डाउट आ रहा होगा तो मैं इसी मीटिंग में क्लियर कर सकता हूँ। ओके, so Shivam, let's continue with the presentation. Yes, sure. So this is the QR code. हम लोग 10 मिनट्स का टाइम लेते हैं, आप स्कैन कर लो। मानिक, ये QR कोड चेंज कर दिया था क्या? नो, ये क्यूआर कोड हाँ चेंज करा था, ये उसी फॉर्म का क्यूआर कोड है, मैंने लिंक चैट में ड्रॉप कर दिया, तो सेम है दोनों के दोनों। Yes, so would be better if you people can create your profile, because as such अभी तो कुछ नहीं बचा है, और in the meantime if you people have any particular question you can also ask. किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप प्रोफाइल बना सकते हो इन द मीन टाइम, और जो भी क्वेश्चन है वी आर मोर देन हैप्पी टू टेक दैट। लेट मी नो, कुछ भी, हिंदी चलेगा, प्रॉपर इंग्लिश चलेगा, वट एवर यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट एंड बी चिल्ड आउट। यू डोंट हैव टू सी मी लाइक व्हाट शुड आई से, ऐसा कि एक्सपीरियंस बंदा या प्रोफेशनल बंदा है। बी चिल्ड आउट एंड जो भी क्वेरीज है यू कैन आस्क, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे like it's our role, if we are in a company at a developmental position, that तुम लोगों के क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो, कोई क्वेरीज ना हो एट द एंड ऑफ द डे, एंड द कम्युनिटी इकोसिस्टम स्ट्रांग रहे। that's what we are for. Yes, एनी क्वेश्चंस किसी भी रिगार्ड में? हैकाथॉन कब होगा, कॉन्फ्रेंस कब होगा, या डेव टोकन्स का यूज कैसे और कैसे तरीके से कर सकते हैं हम, या कुछ और, कुछ भी, कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। सो अपॉर्चुनिटी का, फ्रॉम वेयर वी कैन व्यू आर प्रोफाइल। ओके, Manik, would be better if you can open the like out defined page and show them how they can access the profile link. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। The more you Kashish, the more you interact in the community, also अभी मानिक तुम्हें दिखाएगा, तो I'll also make you go through with कि और ज़्यादा डेप टोकन अपने इंडिविजुअल लेवल पे कैसे जीत सकते हो। बाकी जो कम्युनिटी एंड पे होंगे वो ऐसे होंगे कि आप हैकाथॉन्स में आओ, कॉन्फ्रेंसेज में आओ, या फिर मानिक आगे जाके सेशन होस्ट करेगा, यू कैन अटेंड दो सेशन टू गेट द डेप टोकन्स एंड और भी चीज़ें। लेट मी शो यू पीपल मानिक। तो आप जब आओगे तो ऐसा प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, ये जो ड्रॉप एरो है
कॉपी लिंक करके जो बटन आ रहा है ना, सिंपल क्लिक ऑन दैट एंड वो लिंक कॉपी हो जाएगा। या फिर जो लास्ट में लिंक है, यू कैन ऑल्सो कॉपी दैट लिंक एज वेल। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स हाउ यू कैन कॉपी योर प्रोफाइल। आप टोकन्स पे आओगे तो नीचे करोगे मैंने, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन क्लेम पे क्लिक कर सकते हो जैसे जैसे पूरा करोगे। हल्का सा नीचे करो मानिक, हल्का सा नीचे। या तो जैसे यहाँ पे लास्ट वाला लिखा है कि आप पोस्ट क्रिएट करते हो, लेट्स से 5 पोस्ट क्रिएट किए तो यू विल बी गेटिंग 250 टोकन्स। अगर ऐसा करते हो और 250 टोकन से ज्यादा पोस्ट क्रिएट करते हो तो यू विल बी गेटिंग मोर ऑन दोज लाइंस एज वेल। तो ये कुछ और चीजें हो गई। देन और क्या है, असेसमेंट में जाना माने के एक बार। असेसमेंट, यस। सो ये इसमें आपको फ्री मॉक इंटरव्यू में मिलता है। और आपको लाइक क्या हो गया है आजकल, जब फॉरेन कंपनीज होता है मेजरली, जो आउट डिफाइन पे कंपनीज का प्रोफाइल है वो फॉरेन की है, इंडियन कम है। बिकॉज जो फॉरेन कंपनीज हैं दे हार रिमोट पीपल, ऑफलाइन नहीं बुलाते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम। तो व्हाट यू कैन डू, मानिक हल्का सा स्क्रॉल डाउन करोगे, असेसमेंट है तो जो भी आपने लेट्स से आपने डाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आपको उसका असेसमेंट मिलेगा। आप उसको फिल कंप्लीट कर सकते हो एंड यू कैन गेट 250 टोकन्स। एक बार जब असेसमेंट कंप्लीट कर लोगे तो रिव्यू करेगी आउटडिफाइन की टीम एंड विल गिव यू द रेटिंग्स अकॉर्डिंगली। देन इंटरव्यू का है, यू कैन शेड्यूल योर इंटरव्यू वंस यू कंप्लीट द असेसमेंट विद द आउटडिफाइंड टीम। वो आपका इंट्रोडक्ट लाइक मॉक इंटरव्यू लेंगे एंड दे कैन जज यू ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, और आपको एक ब्रीफिंग मिल जाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या इंप्रूवमेंट का जरूरत है। तो यू कैन अर्न टोकन्स फ्रॉम दैट एज वेल। so these are some of the things you can do to improve your career profile as well, अगर इंटर्नशिप वगैरह या फुल टाइम अपॉर्चुनिटी आगे जाके चाहिए तो। तो ये सारा चीजें हैं। रेस्ट, इफ यू गो ऑन डैशबोर्ड माने कम्युनिटी ऑन द कम्युनिटी, ये आपका डैशबोर्ड खुल जाता है लाइक अ बोर्ड वेयर यू कैन आप अपना पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। ये जो लोड हो रहा है यहाँ पर आपको और उन लोगों के पोस्ट दिखेंगे। आप ऊपर क्लिक करोगे, मानिक हल्का सा स्क्रॉल अप करना, सॉरी अप अप अप, yep. Start a discussion or ask a question. So once you click on that this post or bar, you can simply write your post जैसे लिंक्डइन पे डालते हैं। एंड आपको टैग्स मिल जाएंगे नीचे करके, पूरा प्रोसीजर है। you can complete that out and post कर सकते हो whatever you want to, even if you are starting with build in public, you can be active on this community। और इससे बेटर क्या हो सकता है कि there are 75,000 people who are really into the web3 technology, और even these are the people जो web2 से web3 transition कर रहे हैं। दे विल बी ज्वाइनिंग यू पीपल, या फिर तुम्हारा खुद का एक ब्रांड बन रहा है, राइट। तो ऐसा कुछ करके डाल सकते हो। एंड वंस यू स्क्रॉल डाउन देयर विल बी एन ऑप्शन टू पोस्ट इट आउट, कोई फोटोज लगाना या टैग करना है, सिंपल एज दैट। होप क्लियर हो मेरी साइड से चीज़ें। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मानिक, ही विल शिवम बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। शिवम या मानिक? जॉब्स का भी बता दो यस एक यस। बार। हाँ तो ये देखो, आप डेव टोकन और कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा ना कि लिंक्डइन जब हम प्रीमियम ले लेते हैं तो वो कहता है कि आप प्रीमियम ले लोगे तो आप टॉप 10 प्रोफाइल्स में आ सकते हो, या आपको और बेटर इंसाइट्स मिल सकते हैं जॉब के बारे में, या अपनी विजिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो, राइट। जब 1000 कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो सिमिलरली आप डेव टोकन का यूटिलाइजेशन करके अपना प्रोफाइल विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो जब आप अप्लाई करोगे। और सबसे बेस्ट टू बेस्ट बात, आपको जैसे लिंक्डइन पे हर जॉब एप्लीकेशन के लिए बार बार फॉर्म भरना होता है, वो आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू कंप्लीट योर आउट डिफाइन का प्रोफाइल पूरा, और बस अप्लाई नाउ पे क्लिक करो एंड देन बूम, अप्लाई हो गया इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। तो दैट्स हाउ इट गिव्स यू मोर बूस्ट। और जितने ज़्यादा बैजेस होंगे, असेसमेंट पे जाओगे ना मानिक, तो यू विल सी देयर आर बैजेस, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, अभी मानिक के प्रोफाइल पे देखोगे तो लेवल 1 लिखा आता है। तो वंस ही कंप्लीट दीज अदर लेवल्स एज वेल, तो ये सारे बैजेस आने लगेंगे। जब कोई कंपनी देखती है किसके पास चारों बैजेस हैं, उनको ज़्यादा जल्दी रिक्रूट करती है। तो इट गिव्स यू एन अपर एज एज वेल। तो
better go for it. And in case if you get any particular question किसी भी regard में, you feel free to ask me anytime you want. So you talked about the sessions and conferences. So where can I track down the upcoming events? Is there any way or website? Yeah, Manik will be sharing with you about the conferences hackathon which is going to be happening in your region. अभी दिल्ली एनसीआर में हो रहा है. Manik will share that particular link with you in the WhatsApp group. जो मानिक ने अभी WhatsApp group दिखाया है स्क्रीन पे, प्लीज डू जॉइन दैट बिकॉज उसी के थ्रू आप लोग एज अ कम्युनिटी में रहोगे. एंड आप जैसे ही वेरीफाइड मेंबर बन जाते हो, वंस यू कंप्लीट दोस 3 स्टेप, हम लोग भी, हमारा एक न्यूज़लेटर है विच यू विल गेट ऑन योर ईमेल ऑन एवरी वीकेंड, जिसमें आपको सारा डिटेल्स वगैरह मिला करेगा. So these are 2 ways to get those updates. Awesome. Okay. You also talked about the DevToken that we can buy some educational material like a course. So from where we can do that? Essentially अभी जो कोर्स वाला चीज है, वी आर नॉट फोकसिंग मच ऑन दैट बिकॉज व्हाट वी बिलीव इन कि हम लोग ही खुद के प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे होंगे, जैसे गूगल स्टेप इन प्रोग्राम होता है या माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप होता है, सो दैट वी कैन मेक श्योर कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इट्स अप टू द पॉइंट और एक सर्टेन वे में ऐसा है कि किसी ने मेहनत किया है, लाइक इट्स नॉट कि पैसा कमाना है उससे. सो वी वांट टू स्ट्रक्चर दैट. और हम लोग मतलब जल्दी ही अगस्त में या प्रोबेबली जुलाई एंड में ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे होंगे जहाँ पे आप 2 वीक्स 3 वीक्स के लिए या मोर देन लाइक सॉरी 2 वीक्स 3 वीक्स नहीं, 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए हमारे साथ उस जर्नी में ज्वाइन हो सकते हो. एंड उन प्रोग्राम्स में पार्ट लेने का बेनिफिट ये होगा कि आपको एक तो पूरा करिकुलम जो एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री के अंदर वही लोग बताएंगे. देन वही लोग आपको ये भी बताएंगे कि आप अपॉर्चुनिटी कैसे वेब3 मार्केट में लो. देन एक फाइनल असेसमेंट राउंड होगा जिसको आप कंप्लीट करते हो, तो बेस्ड ऑन योर रैंकिंग और स्कोर इन द सेम हम लोग आपको इंटरव्यू भी देंगे इन द मतलब विदाउट गेटिंग इनटू दिस रिज्यूमे वाला चीज, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगा. इन द मीन टाइम आपको रिसोर्सेज भी मिलते रहा करेगा, कभी मानिक के थ्रू या कभी न्यूज़लेटर पे, so that you can make yourself updated for the same. Okay. Awesome. Also, I wanted to ask that is there any specific date the launch of DevToken on the mainnet? In the Q3 and we will be launching it. So somewhere around November. Okay, nice. Prior to that, what we are making out is the utility of the Dev token. We are not saying other Web3 companies की तरह कि भाई जब mainnet पे आएगा तब खरीदो and then take the benefits. What we have done better in the ecosystem is कि हमारे पास पहले ही से कुछ certain utility है, तो हम लोग वो गेम नहीं खेलना चाहते कि लाइक आपको ऐसा ही कुछ कर दिया उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा. वी वांट टू मेक श्योर कि आपको एटलीस्ट बेनिफिट हो और लिवरेज कर पाओ आप एक सर्टेन डायरेक्शन में उससे, इवन अगर मेन नेट पे भी नहीं है, क्योंकि मेन नेट पे डलता है तो उसका टोकनोमिक्स बदलता है पूरा. सो बहुत सारा चीज़ें अप एंड डाउन होता है उसके अंदर. एंड बहुत मतलब फिर वो प्रॉफिट मार्जिन पे चीज़ें होती हैं, बहुत सारा चीज़ों में इशू क्रिएट होते हैं एक सर्टेन लेवल प्रॉक्सिमिटी पे, तो हम लोग वो नहीं चाहते अभी. दैट्स व्हाई वी वांट टू एंगेज मोर विद द कम्युनिटी विद द डेव टोकन, सो दैट जिनके पास पहले ही से डेव टोकन होल्डिंग होगी दे कैन लिवरेज आउट जब वो मेन नेट पे जाए, क्योंकि पहले ही से ही होगा ना पैसा ऐसा. Yeah, okay. Yep. If किसी का anyone और have कोई क्वेश्चन? any kind of doubt, then they can ask. In case not, please do join the community. Make yourself verified because it's most important. उस WhatsApp ग्रुप में like you know बॉदर नहीं करता है एट द एंड ऑफ द डे कितने लोग हैं, बिकॉज जो कंटेंट है या फिर जो इंफॉर्मेशन है या जो भी बेनिफिट्स है सिर्फ वेरीफाइड मेंबर तक रहेंगे.
दे कांट एक्सटेंड टू द पूरा कम्युनिटी, या फिर ऐसा नहीं होगा कभी कि जैसे अगर इवेंट का भी इनवाइट डाला मानिक ने कम्युनिटी के अंदर, इट्स नॉट गोइंग टू बी ओपन फॉर ऑल इन द मेजोरिटी ऑफ द केसेस और इन टू अ सर्टेन केसेस। कुछ इवेंट्स होंगे, इट्स नॉट लाइक कि सारे इवेंट इनवाइट ओनली होंगे, बट जो क्रीम मटेरियल होगा जहाँ से आपको 110% टू 100% आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है विद रिगार्ड्स टू योर करियर, तो वो थोड़े इनवाइट ओनली हो सकते हैं। तो फॉर दैट प्लीज डू टेक द लेवरेज आउट बाय बिकमिंग द वेरीफाइड। Yes. Also, Shivam, can you drop your LinkedIn profile link in the text? Sure. I'll drop my bento link. It's something like a link tree, no? You people probably can check out that, and yeah. Yeah, okay. Just give me a second. For the rest of the things, Manik will be your primary and primary main advocate who will be leading out every operation in your region or in your community. So do get in touch with him with any particular regards. Yes. Uh, if you have any particular question that you think I can be of any help, please do drop me a text on LinkedIn. Um, I'll try to revert you back as soon as I can or as time allows me. थैंक यू सो मच शिवम फॉर दिस वंडरफुल सेशन। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, सो थैंक यू सो मच। Thank you so much, Manik, for calling me out. Thank you for this. Thank you, everyone. Do let me know अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है। और तो मैं हूँ अभी 4-5 मिनट और थिंक अबाउट इट, कुछ आता है दिमाग में, डू ड्रॉप इन द टेक्स्ट, और इफ यू वांट टू communicate through mic or through voice, please unmute yourself and ask it out. टिल देन मैंने ना फीडबैक फॉर्म शेयर करा है, वो भर दो, क्योंकि उसी के बेसिस पे मैं सर्टिफिकेट सर्कुलेट करूँगा और फीडबैक से मेरे को भी पता चल जाएगा कि फर्दर इन फ्यूचर हम कैसे अपने ऑनलाइन सेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं सबके लिए। तो वो भर देना, ठीक है। और जिन्होंने प्रोफाइल नहीं बनाई ना, वो अभी मीटिंग लीव ना करना, मैं उनकी प्रोफाइल बनाने में हेल्प करूंगा टिल द एंड, जब तक उनकी प्रोफाइल नहीं बनती। जिनकी बन गई है वो लीव कर सकते हैं फीडबैक फॉर्म भरने के बाद, और जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो। Okay, then I feel like we have any particular question over here. Manik, do ping me out. कुछ अगर मेरा support या help चाहिए हो, श्योर। always available. ओके, Good. Thank थैंक you, यू सो everyone. मच। Thank you for joining us. थैंक यू सो मच।